So, hello friends, and welcome to today's session on Cover Page Cover Story, Pregnancy, How to Make a Happy Journey. So, the WHO has issued a new series of recommendations to improve the quality of antenatal care in order to reduce the risk of stillbirth and pregnancy complication and give women a positive pregnancy experience. Every year, hundreds of thousands of women died from pregnancy worldwide related to causes, and 2.5 to around 4 million babies died during the 8 years of life, and millions of babies were still born. Now, the quality of health during the pregnancy and childbirth can prevent many of these deaths. Yet globally, more than 64% of women probably the current time is receiving the antenatal care for more and more throughout their pregnancy. Now, antenatal care is a critical opportunity for health providers. But to deliver care, support, information to pregnant women, the right information is more important. So this includes healthy lifestyle, including good nutrition, detecting and preventing diseases right on time, providing family planning, counseling, and supporting women who may be experiencing intimate, maybe partner violence at times. So if the women are need to these antenatal care services, we are here to provide the services through best spread of awareness. And today is yet another episode where Dr. Anuj Rastogi is going to have a beautiful chat session with Dr. Vimlesh Sharma. Ma'am has huge experience. It's an honor to have you today, ma'am. So Dr. Vimlesh Sharma started her journey with a charitable hospital in sonography and laparohysterectomy since 2000. She has done more than 10,000 deliveries during the tenure of 2 decades. She is known to handle complex and high-risk pregnancy with her expertise. She's engaging her maximum time with IVF since last 6 years. Dr. Vimlesh has facilitated more than 200 IVF deliveries and still counting. Dr. Vimlesh has dedicated her time as part of charity and goodwill work to Menopause Association of Hapur, where she is supporting 40 plus years of women through her team of gynecologists, spiritual and yoga expert, along with nutritionists. So today, Dr. Anuj Rastogi sir is going to have an in-depth discussion with Dr. Vimlesh. Sir, over to you. Thanks, Deepmanji. Thanks. And hello, friends. I welcome you all into this gathering, this virtual gathering, and please join me in welcoming Dr. Vimlesh for this webinar. Hello, Dr. Vimlesh. Hello. Hello, Dr. Vimlesh. Can you hear me? Hello. Dr. Vimlesh, you are mute. Okay. Hello, sir. Good evening. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay. So today we are talking, we will be talking about pregnancy and how we should plan pregnancy. It is not that pregnancy हो गई और delivery हो गई. आप आज से 10 से 15 साल पहले देखें तो तकरीबन जो न्यूली बॉर्न बेबी थे, जो फर्स्ट मंथ की मॉर्टेलिटी थी अराउंड 40 पर 1000 थी. अब वो घट के 23 पर 1000 रह गई है. और एज ए न्यूनेटोलॉजिस्ट जब मैं बच्चे एडमिट करता हूँ नर्सरी के अंदर, तो मुझे लगता है इनमें 50% एडमिशन दे आर प्रिवेंटेबल. अगर ठीक से प्लानिंग हो तो उनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी. आज मैं इसी बारे में डॉक्टर बिमलेश से बात करूंगा. डॉक्टर बिमलेश जो एक बहुत सीनियर ऑब्स्टिशियन है, जिनका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है हमारी पॉपुलेशन के साथ, हमारी सिविल सोसाइटी के साथ. हम डेवलप्ड कंट्री से जरूर compete नहीं कर सकते, बट हम ऐसे सीनियर डॉक्टर से एडवाइस लेके जरूर उनका मुकाबला कर सकते हैं अपनी मॉर्टेलिटी रेट कम करने में और मॉर्बिडिटी कम करने में. तो डॉक्टर बिमलेश जैसे एक न्यूली वेड है और वो प्लान कर रहा है प्रेगनेंसी के लिए, तो उसके लिए क्या एडवाइस है आपको, कैसे उन्हें प्रोसीड करना चाहिए इसके लिए? Thank you, Dr. Anuj and your team for giving me this platform so that I can give the message to the society. And it's a very wonderful step. आपका जो स्टेप है बहुत वंडरफुल है सोसाइटी के लिए, क्योंकि लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है.
और जो मिथ्स हैं लोगों में रिगार्डिंग द प्रेगनेंसी, रिगार्डिंग द डॉक्टर्स, तो आई थिंक जो आपका ये इफर्ट है, जो लिंक है बिटवीन द सोसाइटी एंड ए डॉक्टर, वो स्ट्रॉन्ग ही करेगा। और जो एक हम लोग की इमेज जो खराब हुई है पब्लिक में, उसको इम्प्रूव ही करेगा कि वी आर नॉट ऑलवेज रॉन्ग। तो डॉक्टर अनुज, हेलो। Yes, हाँ ma'am. डॉक्टर अनुज, मैं सभी माओ को सबसे पहले 8 मार्च जो आ रहा है वुमेन डे, उस पर बधाई देती हूँ कि हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल मदर्स जो कमिंग ऑन 8 मार्च। जी, सेकंड, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं जरूर कहूंगी, माँ बनना एक लेडी के लिए गर्व और सम्मान और प्रेम का संकेत है। आपको जन्म से सब रिश्ते मिल जाते हैं, आप बहन भी बन गई, मौसी भी बन गई, चाची भी बन गई, भाभी भी बन गई, लेकिन माँ एक ऐसा रिश्ता है, वो तभी मिलता है जब आपने किसी बच्चे को जन्म दिया हो। तो आज हम और आप सब लोग ये जानते हैं कि लाइफ, एक औरत अपनी लाइफ को खतरे में डालकर एक नया जीवन इस पृथ्वी पर लाती है, और आई थिंक इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता किसी के लिए भी। तो आज हम लोग हर माँ के स्वास्थ्य के लिए, सेफ रहने के लिए चर्चा करेंगे। ये 9 महीने की एक 9 महीने की जर्नी होती है, इसको कैसे सुखद और सेफ बनाएं, उसी के ऊपर डॉक्टर अनुज के एफर्ट है ये। तो डॉक्टर अनुज, अब हम अपना मेन डिस्कशन शुरू करेंगे। ये मेरा एक छोटा सा इंट्रो था रिगार्डिंग द टुडेज प्रोग्राम। जी मैम, जी। सो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि न्यूली वेड जो कि प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है और वो आपके पास आता है, तो आपकी क्या एडवाइस होगी उसके लिए जिससे हैप्पी जर्नी? हाँ, ओके। तो डॉक्टर अनुज, आज के टाइम में यदि देखा जाए तो प्रेगनेंसी प्लान्ड वे में होगी तो ज्यादा अच्छा है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऑल्दो द बेस्ट एज फॉर द कंसेप्शन इज 18 to 25 years, तो लेकिन आज के टाइम में ना 18 साल में शादी होती है ना 25 साल में। प्रेगनेंसी के जो रेट्स हैं बहुत कम है, मतलब कम लेडीज आती है जो 25 साल से कम में मेरे पास आती हैं। तो मेरा एक सिंपल अपना ये रहता है कि कैरियर तो हर लेडी के लिए लाइफ लॉन्ग होता है, कैरियर की अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी क्योंकि उसके साथ एजुकेशन है, लेकिन प्रेगनेंसी प्लानिंग जो होती है वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। तो बेहतर होगा कि प्रेगनेंसी को हमेशा प्लान्ड वे में चलें। तो अच्छा तो ये रहेगा कि लाइक कुछ पहले से न्यूली वेड कपल अपना प्लान कर ले, अपना फैमिली स्टेटस देख ले, अपना फाइनेंशियल स्टेटस देख ले, अपनी दोनों की हार्मनी देख ले। इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपकी आपस की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी या बच्चा होना एक, मैंने कहा ना, प्रेम का संकेत है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि प्रेगनेंसी जिस समय होती है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि लेडी स्ट्रेस में ना हो। तो आप प्लान्ड वे में प्रेगनेंसी का कीजिए, और उससे पहले आप अपना हेल्थ स्टेटस जरूर असेस करा लीजिए। आपने लोकल डॉक्टर से, फैमिली डॉक्टर से, फैमिली डॉक्टर से आप सिंपल हेल्थ असेसमेंट करा लीजिए। जैसे आपको अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, आपका अपना हेल्थ स्टेटस ये है कि आपका एनीमिया, हीमोग्लोबिन ठीक होना चाहिए, आप डायबिटिक तो नहीं है, आपका थायराइड लेवल तो नॉर्मल है। तो एक बेसिक टेस्टिंग है बिफोर प्लानिंग टू द प्रेगनेंसी। एक आप ये देख लीजिए कि आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर या मेडिकल डिजीज तो नहीं है। दूसरी बात, यदि आप ओबीज हैं तो कोशिश करिए सबसे पहले अपना वेट रिड्यूस करिए, डाइट प्लानिंग लीजिए, उसके बाद ही प्रेगनेंसी प्लान करिए। यदि आप अंडर वेट है तो आप पहले डाइटिशियन की कंसल्टेशन से बेटर होगा कि आप अपना वेट गेन करिए। तो हेल्थ स्टेटस आपका इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत ना हो। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, प्री कंसेप्शनली, मतलब प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले क्या, कुछ वैक्सीनेशन हैं जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आप लोग वैक्सीनेशन करा लीजिए। जैसे क्योंकि वो जो इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन बच्चे के लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं और आपके लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं। जैसे कुछ इन्फेक्शन है, लाइक फ्लू का इन्फेक्शन है, चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन है, या रुबेला का इन्फेक्शन है, तो ये बच्चे को और आपको दोनों को दिक्कत करेगा। तो बेटर होगा कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आप अपने को ये जान लीजिए
क्या आप रुबेला के लिए वैक्सीनेटेड है? क्या आप फ्लू के लिए, आइडियली फ्लू का वैक्सीनेशन पूरी सोसाइटी में एवरी ईयर होना चाहिए। जब फ्लू का सीजन आने वाला है तो उससे 2-3 महीने पहले फ्लू का वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। इस बीच में यदि प्रेगनेंसी होती है बाद में, तो 6 मंथ के बाद आप एक और वैक्सीन लगवा लीजिए फ्लू की, तो वो बूस्टर की तरह भी काम करेगी और आपकी प्रेगनेंसी भी सेफ रहेगी और आप भी सेफ रहेंगे। थर्ड थिंग, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन आप बिफोर प्रेगनेंसी, कैंसर सर्विक्स मतलब एचपीवी वैक्सीन वो पहले करा लीजिए। और यदि आपको कोई हिस्ट्री है कि भाई आपको पास्ट में चिकन पॉक्स हुआ था, तो और आप बिल्कुल कंफर्म है कि आपको चिकन पॉक्स ही हुआ था, तो ठीक है, क्योंकि चिकन पॉक्स की इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग होती है लेडी को। अदरवाइज आप चिकन पॉक्स का वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले करा लीजिए। तो ये मेरी रिकमेंडेशन होगी कि व्हेनेवर यू आर प्लानिंग फॉर द प्रेगनेंसी, तो बिफोर कंसेप्शन यू शुड बी वैक्सीनेटेड प्रॉपरली फॉर चिकन पॉक्स, रुबेला, एचपीवी, हेपेटाइटिस बी एंड फ्लू। राइट मैम, कुछ विटामिन भी देना चाहेंगी जैसे फॉलिक एसिड और आयरन? Yes sir, yes sir. I always prefer to give like if she is anemic, so I will prefer to give the iron preparation or anything deficiency is there, like आजकल की सोसाइटी में बहुत ज्यादा जो मिल रहा है सर, हाइपोथायराइडिज्म बहुत मिल रहा है, डायबिटीज बहुत मिल रहा है, तो उनका शुगर स्टेटस पता होना चाहिए। इफ देयर इज फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, तो आई ऑलवेज प्रिफर टू डू द HB1C to see the last 3 month status of the sugar level. And after excluding all these things, I always prefer to give folic acid 3 months prior to the conception. वेरी गुड। तो आपने बताया मैडम, जब भी एक न्यूली वेड कपल आपके पास आए या न्यू कपल आया जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है, वो अपना वेट कंट्रोल करे। वेट अगर कम है तो थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करें प्रेगनेंसी से पहले, और ज्यादा है तो कम करने की कोशिश करें। और ब्लड प्रेशर चेक कराएं, शुगर चेक कराएं, हीमोग्लोबिन चेक कराएं। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएं, थायराइड कराएं, तब प्रेगनेंसी की तरफ बढ़ें। और प्रेग्नेंट होने से पहले 3 महीना पहले फॉलिक एसिड 400 माई का आपने बताया कि रोजाना लेना है, जिससे कि ब्रेन के अंदर या कोई स्पाइन के अंदर कुछ बीमारी हो जाती है, वो बीमारी ना हो। और Yes, sir. आपको अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए कि वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या, ये आपने बताया। एक Yes, ऐसी sir. अब एक फैमिली ऐसी आती है कि वो ये सब जानती नहीं है और वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी? पहली बार प्रेग्नेंट हुई है लेडी। तो सबसे पहले तो हम सर ये देखेंगे कि कितनी वीक्स की प्रेगनेंसी है, कितने टाइम की उसकी प्रेगनेंसी है। सपोज एज सुन एज शी कंसीव, 10 दिन ऊपर हुए, 15 दिन ऊपर हुए, तब वो यदि मेरे पास आई है, तो आई विल डू द फुल एग्जामिनेशन ऑफ दैट लेडी टू एक्सक्लूड अदर कोई उसको मेडिकल डिजीज तो नहीं है। राइट। उसका ब्लड प्रेशर भी देखेंगे, एक बार चेस्ट ऑस्कल्टेट भी करेंगे, हार्ट भी उसका चेक करेंगे, कोई हार्ट डिजीज तो नहीं है। क्योंकि कई बार हम लोग क्या देखते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्ट डिजीज जो होती है वो डिटेक्ट होती है, वो पता चलती है, और लेडी को पता ही नहीं है उससे पहले, ना कभी उसने नोटिस किया। ऑल्दो जब स्कूल में जाती है, खेलती है, सांस फूलता है, तो वो ऑलवेज उसको इग्नोर करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पर हार्ट की प्रॉब्लम, चेस्ट की प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि जब प्रेग्नेंट लेडी होती है तभी वो मैनिफेस्ट करता है। तो फर्स्ट विजिट में हम लोग हमेशा उसका एक टोटल हेल्थ स्टेटस देखते हैं, कितना टाइम उसका ओवर हुआ है। अल्ट्रासाउंड एक एडवाइस जरूर करते भी हैं, क्योंकि हमें ये कंफर्म करना होता है कि प्रेगनेंसी यूट्राइन कैविटी में है या यूट्रस के बाहर है, प्रेगनेंसी अलाइव है या नहीं अलाइव है, क्योंकि ये बड़ा कॉमन कॉज है। एक्चुअली मोर देन 50% कॉज जो होते हैं, चाहे क्रोमोसोमल होते हैं, जेनेटिक कॉज होते हैं, पर उनमें वो सीधा मिस्ड अबॉर्शन के साथ हमारे पास आते हैं। वो कहते हैं कि हमें तो कोई दिक्कत नहीं दी, हमें तो 2 महीने की प्रेगनेंसी है। जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें कार्डियक एक्टिविटी नहीं होती है, बच्चे की हार्ट बीट नहीं होती है। तो फर्स्ट विजिट में हमारा एक बेसिक हेल्थ असेसमेंट होता है, बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जिसमें हम लोग एक ANC प्रोफाइल कराते हैं। ANC प्रोफाइल में हम लोग क्या कराते हैं, ABO-RH कराते हैं, G75 ब्लड शुगर कराते हैं, सारे वायरल मार्कर कराते हैं, HIV, HBS, HCV, VDRL, ये सब एक्सक्लूड करते हैं, और थायराइड एक्सक्लूड करते हैं, हाइपोथायराइडिज्म एक्सक्लूड करते हैं सर। तो दीज आर द बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो हम लोग फर्स्ट विजिट में कराते हैं। इफ द प्रेगनेंसी इज ऑफ मोर देन 15 डेज तो अल्ट्रासाउंड भी करते हैं।
तो आपके And हिसाब we से advise मतलब the folic acid from the very first visit. अच्छा, ओके ओके। फॉलिक एसिड अगर उसने नहीं लिया है तो आप देना शुरू कर देती हैं, और आयरन भी देना चाहेंगी ऐसे में आप, अगर उसका हीमोग्लोबिन कम है? सर फर्स्ट 3 मंथ में वी यूज मतलब अवॉइड करते हैं हम लोग आफ्टर 3 मंथ। फॉलिक एसिड देते हैं, और विटामिन तो डी फर्स्ट वगैरह? 3 मंथ में हम सर फर्स्ट विटामिन 3 मंथ तो हम लोग केवल फॉलिक एसिड, विटामिन डी मैं प्री कंसेप्शनल प्रीफर करती हूँ, बट फर्स्ट 3 मंथ में, क्योंकि इनका कुछ रिपोर्टेड नहीं है कि कोई टेरेटोजेनिक इफेक्ट तो नहीं है, किसी की स्टडी नहीं है कि फर्स्ट 3 मंथ में हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ऑल्दो मतलब मैं उसको जरूर प्रेशराइज करती हूँ डाइट के ऊपर। डाइट एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, आई ऑलवेज स्ट्रेस ऑन दिस। प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, these are the basic things, क्योंकि प्रेगनेंसी एक नॉर्मल थिंग है, नॉर्मल फिजियोलॉजी है, इट्स नॉट ए डिजीज। why राइट the ladies are taking it like a disease? if you are healthy, like preconceptionally, यदि आप medically fit है, तो this is a enjoyable period। आप बच्चे का मूवमेंट फील करते हैं, बच्चे के हर चीज इंट्रायूट्राइन फील करते हैं, जो कोई और फील नहीं कर सकता। बच्चे का फादर नहीं फील कर सकता, ओनली द राइट मदर इज द लेडी हु कैन फील इट। राइट मैम, राइट। एंड व्हाट अबाउट अल्कोहल? जैसे आजकल लड़की वोडका वगैरह ले लेती हैं, तो क्या फर्स्ट 3 मंथ्स में लेना चाहिए उनको? सर मैं तो कहूंगी पूरी प्रेगनेंसी में ही नहीं लेना चाहिए, फर्स्ट 3 मंथ की तो बात नहीं है, राइट क्योंकि कोई भी एडिक्शन और अल्कोहल, टोबैको, स्मोक, ये सब चीज का सेफ नहीं है प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि ये क्या करती हैं, प्री टर्म डिलीवरी, अबॉर्शन का कॉज होता है इंपॉर्टेंट, प्री टर्म डिलीवरी का कॉज होता है, हाइपरटेंशन का कॉज होता है, डायबिटीज का कॉज होता है, मतलब काफी सारी मेडिकल डिजीज एसोसिएटेड हो जाती है व्हेन यू आर एडिक्टेड टू अल्कोहल। और अगर हस्बैंड सिगरेट वगैरह पीते हैं तो वो मतलब सेम रूम में पी सकते हैं, या उन्हें बाहर ही पीना चाहिए या छोड़ देनी चाहिए? देखिए इससे अच्छी बात क्या है, यदि प्रेगनेंसी की फील के साथ हस्बैंड छोड़ देता है, तो इससे बड़ी तो कोई लेडी का अचीवमेंट नहीं होगा। हर जी। लेडी का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि वो प्रेग्नेंट हुई, उसके हस्बैंड ने स्मोकिंग छोड़ दी। अच्छा। पर जब यदि नहीं छोड़ पाते हैं तो उनको कम कर देनी चाहिए, एंड उनको अवॉइड करना चाहिए सेम रूम में। और इवन क्योंकि लेडी यदि उस कमरे में है, इवन जो हस्बैंड की ब्रेथ है उससे भी निकलता तो है ही, तो लेडी पर अफेक्ट तो होता ही है, आइडियली तो उसको कम कर देना चाहिए। राइट मैम, राइट। अच्छा, फर्स्ट मंथ का असेसमेंट हो गया तो आप दोबारा उनको कब अपनी ऑब्स्टिशियन के पास जाना चाहिए? सर 11 to 13 वीक्स, लाइक जब 3rd मंथ स्टार्ट हुआ है, जी। तो 3rd मंथ स्टार्ट होने पर उसको जरूर एक अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन को दिखा लेना चाहिए। दिस इज द बेस्ट पीरियड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड इन दिस 9 मंथ ऑफ पीरियड। इस हम लोग 3rd मंथ में मैक्सिमम प्रॉब्लम्स एक्सक्लूड कर लेते हैं और मैक्सिमम प्रेगनेंसी का आउटकम असिस्ट कर लेते हैं। जैसे यदि कोई क्रोमोसोमल एनोमली है, बच्चा मंगोल होने जा रहा है, मतलब डाउन सिंड्रोम है, या कोई उसका अबॉर्शन का कॉज हो सकता है, या फिर उसको कम टाइम की डिलीवरी हो सकती है, मतलब प्री टर्म डिलीवरी हो जाए, वो भी असेसमेंट हो जाता है हमें कि यदि हमारी सर्वाइकल लेंथ छोटी हो गई है तो 100% शी विल गो इनटू द प्री टर्म डिलीवरी 7 मंथ पर या 8th मंथ पर। या हम लोग कुछ टेस्टिंग उसमें करते हैं तो उससे हमें ये भी पता चल जाता है। 3 मंथ का बता रही हूँ सर ये मैं, 3 मंथ पे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन 3 मंथ के अल्ट्रासाउंड से और बायोकेमिकल टेस्टिंग से। उसमें हमें ये भी पता चल जाता है कि फ्यूचर में इस लेडी को हाइपरटेंशन होगा या नहीं होगा, और ये बच्चा आईयूजीआर तो नहीं रहेगा, इस बच्चे के टाइम पर प्लेसेंटा प्रिया मतलब आमन नाल नीचे तो नहीं होगी, या पानी का स्टेटस, मतलब एक बेसिक बहुत सारी डिजीज का प्रॉब्लम जो होता है वो हमें फर्स्ट 3 मंथ का जो हम लोग करते हैं टेस्टिंग, उससे पता चल जाता है। राइट मैम, राइट। और अगर सब कुछ बड़ा स्मूथली जा रहा है तो अब हम जो नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या प्लानिंग रखें चेकअप्स की? सर लाइक जो ये चेकअप हुआ है ये हमारा प्रिफरेबल 11 to 13 वीक्स पर, जब 3rd मंथ हमारा पूरा हो गया। उसके बाद जो सेकंड चेकअप हम लोग करते हैं, यदि हमने इसमें एंटी स्कैन, एक टेस्ट होता है एंटी स्कैन, यदि जिसमें हम लोग अल्ट्रासाउंड से न्यूक्लियर थिकनेस देखते हैं और बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं। यदि हमारा बायोकेमिकल टेस्ट नॉर्मल है, न्यूक्लियर थिकनेस नॉर्मल है, मतलब हमारा रिस्क फैक्टर नहीं है, रिस्क फैक्टर लो है, ये तो न्यूकल थिकनेस से हमें क्या इंटरप्रिटेशन होता है? अगर न्यूकल थिकनेस बढ़ी हुई है तो फिर क्या करना चाहेंगे और क्या क्या हो सकता है उससे? सर क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। डाउन सिंड्रोम है, पेटेटो सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है,
या ये टर्नर सिंड्रोम है या सेक्स लिंक एबनॉर्मलिटी है। कहने का मतलब ये कि एबनॉर्मल बच्चा ये अबॉर्ट भी कर सकता है मीनवाइल, या पैदा होता है तो अब मेंटली रिटार्डेड बच्चा होगा। दूसरा, इन बच्चों में हार्ट डिजीज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं यदि न्यूक्लियर थिकनेस बढ़ी हुई है। तो इसको फिर फर्दर टेस्ट करते हैं मैम, या ऐसे सीधा अबॉर्ट कर देते हैं? नहीं नहीं, यदि ये लो रिस्क फैक्टर में आता है, लाइक यदि पेशेंट की एज फैक्टर देखते हैं हम लोग, एज फैक्टर और बायोकेमिकल टेस्ट और न्यूक्लियर थिकनेस, इन तीनों से हम एक रिलेटिव रिस्क असेसमेंट करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम इन लोगों को 3 ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, लो रिस्क, इंटरमीडिएट रिस्क, हाई रिस्क। तो जो लो रिस्क है उसको हम सीधा फिर 18-20 वीक्स पर लेवल 2 के लिए बुलाते हैं। यदि इंटरमीडिएट रिस्क होता है तब भी हम लोग 16 वीक्स पर, 16 to 18 वीक्स पर लेवल 2 करते हैं एंड क्वाड्रपल टेस्ट कर लेते हैं। ओके मैम। यदि हमारा हाई रिस्क है तो विल प्रीफर आइदर सीवीएस या एमनियोसेंटेसिस। ओके, सीवीएस का मतलब है गर्भ में से ही कोराइड प्लेक्सिस का वो जो टिश्यू ले लेते हैं, टिश्यू ले लेते हैं। वो टेस्टिंग के हाँ, लिए भेजते हैं, या पानी हाँ को टेस्ट भेजते हैं? वो अकॉर्डिंग टू जो भी पेशेंट के लिए ज्यादा सुटेबल है आपको लगता है वो आप कराती हैं फिर? मतलब वीक्स के ऊपर है। यदि 16 वीक्स के आसपास है तो हम लोग प्रीफर करते हैं एमनियोसेंटेसिस की, पेट से पानी ले लेते हैं। और यदि टाइम कम है तो हम लोग वेजाइनली और या फिर एब्डोमिनली टिश्यू ले लेते हैं, कोरियोनिक विलस ले लेते हैं जी। कोरियोनली। इससे अगर आगे प्रेगनेंसी अच्छी नहीं होने जा रही है तो आप डिसीजन यही ले लें जिससे वो आगे कहीं ऑपरेशन की नौबत या कुछ और परेशानी फीमेल के साथ ना पड़े। यस क्योंकि सर। हर एक की प्रेगनेंसी स्मूथ जाएगी ये जरूरी नहीं है, ये सब चेकअप इसलिए जरूरी है। अब हम यस सर। अगर अब इस 3 to 6 मंथ में मंथली जाना है आपको अपनी ऑब्स्टिशियन के पास, या एक ही बार जाना है 3 से 6 महीने में? नहीं, आपकी फर्स्ट विजिट हो गई एज अर्ली एज शी नो की उसको प्रेगनेंसी है। सेकेंड विजिट उसकी होगी 11-13 वीक्स पे। थर्ड विजिट होगी उसकी 18 वीक्स पर, 18 to 20 वीक्स, मतलब जब 5th मंथ स्टार्ट होता है। तो एनाटॉमिकली मतलब स्ट्रक्चरली अपेरेंटली बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है स्ट्रक्चरली, कि बच्चे का ब्रेन का लेवल की हाइड्रोकेफलस तो नहीं है, या बच्चे के हाथ पैर ठीक है, क्लेफ्ट लिप पैलेट तो नहीं है, हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है। यदि कोई पेशेंट डायबिटिक है या उसकी फैमिली हिस्ट्री कार्डियक डिजीज की, तो वी ऑलवेज प्रिफर टू डू द फीटल इको एट 22 वीक्स। अदरवाइज 18 वीक्स पर एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें हम कंजेनिटल एनोमली एक्सक्लूड करते हैं, और जो डायबिटिक प्रेगनेंसी या हिस्ट्री वाइज है या तो उनमें हम लोग फीटल इको कराते हैं 22 वीक्स। ओके मैम। और अगर फिर उसके बाद नेक्स्ट प्लान क्या होता है जब यहाँ तक सही आ गए, 20-22 हफ्ते हो गए तो और सर आपने 7 मंथ पे हम लोग ये देखते हैं, ग्रोथ स्कैन एक करा लेते हैं कि बच्चे की ग्रोथ जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि 5 मंथ तक बच्चे की पूरी एनाटॉमी बन गई, बच्चा पूरा बन गया, बच्चे के हाथ पैर दिमाग सब कुछ बन गया। अब बच्चे की ग्रोथ होनी है, तो अब हमें ये देखना है कि बच्चे का जितना पीरियड था उस हिसाब से बच्चा की ग्रोथ नॉर्मल हो रही है, ज्यादा है या कम है। तो जो एक्शन होगा, हमारा एक्शन प्लान होगा, वो ग्रोथ स्कैन के अकॉर्डिंग होगा, और लाइकर स्टेटस। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट बात होता है सर, कि ज्यादातर प्रेगनेंसी 5-6 मंथ तक बिल्कुल नॉर्मल चलती हैं। जो दिक्कत आती है हमें 6 मंथ के बाद आती है, कि जैसे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया या शुगर बढ़नी शुरू हो गई। अल्ट्रासाउंड से तो हमें एक बेसिक असेसमेंट पता चल जाता है। कभी कभी तो सर ऐसा भी हुआ है कि लाइक जो ग्रोथ 7 मंथ पे हमने बुलाया तो उसकी ग्रोथ हमें लगा कि कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रही पीरियड को। तब हम सोचते कि क्या क्या कारण हो सकते हैं कि ग्रोथ क्यों नहीं बढ़ रही है। तो ऐसे पेशेंट में कई बार ब्लड प्रेशर जो केवल माइल्ड, बहुत बॉर्डर लाइन, मतलब हल्का सा बीपी बढ़ा है, तो कहने का मतलब है कि वो टाइम पीरियड होता है जिसको हमें पिकअप करना है कि अब इस लेडी का बीपी बढ़ने लगा है, इसीलिए ये ग्रोथ के ऊपर अफेक्ट कर रहा है। मतलब उससे माँ का खाया पिया बच्चे को नहीं लगेगा अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया। मैं अगर सिंपल शब्दों में समझूं तो जो माँ न्यूट्रिशन ले रही है वो बच्चे की ग्रोथ में नहीं लग रहा है अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो क्या ऐसा है कि किसी का ब्लड प्रेशर मान लो 130/90 हो गया
140/90 हो गया, तो क्या उससे भी आगे बढ़ जाएगा? क्या अचानक से और तेज बढ़ सकता है? क्या उसे रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक कराना होगा? क्या उसे यूरिन भी चेक कराना होगा? क्या उसकी प्लानिंग रहेगी? क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं ब्लड प्रेशर सही है, फिर दोबारा वो ब्लड प्रेशर ही चेक नहीं कराते। आज की तारीख में अगर किसी का बच्चा नहीं पनप रहा, तो जितनी मेरी नॉलेज है, उनके घर पे बीपी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, जिसमें वो 3 दिन में 4 बार खुद बीपी नापे और हफ्ते में 1 बार वो अपनी ऑब्स्टिशियन को जाके बीपी चेक कराएं और चेक कराएं। क्योंकि अचानक से जो बच्चे पनप नहीं रहे होते, या जिनके अंदर ब्लड प्रेशर पहले से शिकायत चल रही है, या जिनको प्रेगनेंसी के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, क्योंकि उस समय हार्मोन का चेंज होता है, हार्मोन ज्यादा बन रहे होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, तो ब्लड प्रेशर कुछ माओ का बढ़ जाता है। और ये कहते हैं जब उनके यूरिन में जब इस ब्लड प्रेशर का और ऑर्गन्स पे इफेक्ट होने लगे, तो उस कंडीशन को कहते हैं प्री एक्लेम्सिया, और वो अचानक से बहुत सीवियर स्टेज में जाने लगती है। क्या ऐसा है मैम? इसके लिए रेगुलर टच में। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल रेगुलर सर ब्लड प्रेशर कुछ ही पैरामीटर है, जैसे हम लोग की जो विजिट है फिक्स है। फर्स्ट विजिट हो गई, 3 मंथ पर विजिट हो गई, 5 मंथ पर विजिट हो गई, 7 मंथ पर विजिट हो गई, देन 8 मंथ एंड 8.5 मंथ। हर विजिट पर बेसिक हमारा ब्लड प्रेशर एग्जामिनेशन होता है। पीडल इडिमा हमें चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि पीडल इडिमा तो नहीं है, मतलब पैरों पे सूजन, पैरों पर सूजन तो नहीं है, या बॉडी पर कहीं सूजन तो नहीं है। ब्लड प्रेशर उसका देखना होता है, और एनीमिया का स्टेटस देखना होता है, ग्रोथ स्कैन देखना होता है। ये हर विजिट में हमें एग्जामिनेशन पॉइंट होते हैं जो हमें देखने होते हैं। और रेगुलर वे में ब्लड प्रेशर देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ता ही लेडी का 6 मंथ के बाद है। और जैसे आपने कहा 140/90, 140/92, या कई बार क्या होता है जो बेसल, सपोज किसी का प्री प्रेगनेंसी या फर्स्ट विजिट पर ब्लड प्रेशर 110/70 है, 110/70 यदि उसका ब्लड प्रेशर है फर्स्ट विजिट पर, और वो पेशेंट मेरे पास 5 मंथ पर आ रही है या 6 मंथ पर आ रही है, और उस समय उसका बीपी सपोज 140, 84, 86 है, तो उसको भी मैं राइजिंग टाइटर मान के चलूंगी। ओके। मतलब ये मेरे लिए अलार्मिंग है, ये मेरे लिए अलार्मिंग है। ऑल्दो यदि ब्रॉडली देखा जाए नॉर्मल रेंज है, लेकिन उसका बेसल बीपी क्या था, हमें उससे असेस करना है कि फर्स्ट विजिट में उसका बीपी क्या था, या जो उसका ग्रोथ स्कैन हम देखते हैं, लेडी का वेट गेन देखते हैं, तो फर्स्ट विजिट पे वेट क्या था, और हर विजिट पे कितना वेट गेन कर रही है लेडी। ओके तो मैम। ब्लड प्रेशर हमें अर्ली डिटेक्ट करना है कि कब बढ़ना शुरू हुआ। पर इस तरीके के भी केसेस होते हैं कि कई बार पूरे 8 मंथ तक किसी का बीपी नहीं बढ़ता, नॉर्मल रेंज में होता है 8.5 मंथ तक, और सडनली उसका 8.5 महीने पर बीपी हो जाता है 160/110 या 170/110। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि 8 महीने तक नॉर्मल बीपी पर वो रही है लेडी, और 8.5-9 महीने पर वो मेरे पास आती है कि मेरा बच्चा नहीं घूम रहा है, और हम लोग देखते हैं कि बच्चा एक्सपायर हो चुका है पेट के अंदर, और उस समय उसका ब्लड प्रेशर होता है 170/110। ओके। तो ब्लड प्रेशर वेरी रेगुलरली लेडी को चेक करा लेना चाहिए, खुद कर आज ले, नियर बाय प्लेस पर करा ले, और डॉक्टर तो करेगा ही सर। आजकल ऑटोमेटिक मशीन मिलती हैं और बहुत सस्ती भी हैं वो। इतना तो आप अपने घर पे रख के भी दिन में 4 बार बीपी चेक कर ही सकते हैं 6 महीने के बाद, कि अचानक से अगर बीपी बढ़ने लगे तो राइट टाइम आप डॉक्टर पे पहुंच जाएं। और हफ्ते में और 10 दिन में अगर आपका बच्चा नहीं बढ़ रहा है, तो अपने बीपी पे जरूर ध्यान रखें। शायद यही मैसेज है आपका। और यूरिन एल्बुमिन वगैरह भी कराना चाहिए ऐसी महिलाओं का जिनका बीपी बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, जिनके पैरों पर सूजन है, उनको यूरिन एल्ब्यूमिन जरूर करा लेनी चाहिए। एक मैसेज जरूर मैं सर सबको देना चाहूंगी कि कभी कभी लेडी को उल्टियां बहुत लगती हैं, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है, ओके। या बहुत फ्रीक्वेंट सिर दर्द की कंप्लेन वो करती है, तो दीज आर नॉट द नॉर्मल थिंग्स। ओके मैम। कभी ये कभी क्या ये होता है जो कि सडन बीपी बढ़ने से भी सिर में दर्द और उल्टियां लगती हैं सर, तो वो सीधा प्री एक्लेम्प्टिक स्टेट होती है। कई बार मेरे पास 6.5 महीने और 7 महीने की पेशेंट आती है फ्लैंक, बिल्कुल फ्रैंक एक्लेम्शिया में। तो ये उन लोग के लिए बड़ा अलार्मिंग मतलब साइन होता है कि यदि उनको चेस्ट में पेन हो रहा है, सिर में दर्द है, उल्टियां बहुत आ रही हैं, तो एक बार जरूर गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस कर लेना सिर चाहिए दर्द, सर। अगर प्रेगनेंसी के अंदर सिर दर्द हो रहा है खासकर 6 महीने के बाद, तो उसे थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। लेना चाहिए, यस सर। उसे ऐसे क्रोसिन वगैरह खा के टालना नहीं चाहिए। तो यस आपकी सर, बात से मुझे लगा ब्लड प्रेशर तो बहुत ही जरूरी है और रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और बिल्कुल सर। आपका आजकल क्योंकि IUDR, अभी किसी ने चैट बॉक्स में भी डाला है, मेरा बच्चा 31, 32, 33 हफ्ते पे 1.5 किलो के करीब का है, 1 किलो 500 ग्राम का है।
तो बच्चा निश्चित रूप से उतनी ग्रोथ नहीं कर रहा है जितनी ग्रोथ करनी चाहिए। तो उन्हें जरूर मेरे ख्याल से अपनी ऑब्स्टिशियन को फौरन दिखाना चाहिए और चेक कराना चाहिए क्या हो रहा है। और ब्लड प्रेशर एक ऐसी इमरजेंसी आप जो कि मैनेजेबल है और टाइम मतलब उसमें लेडी डॉक्टर अपने पेशेंट को वार्निंग साइन बताती हैं कि भाई अचानक से अंधेरा आ जाए, डबल दिखने लगे, सिर में दर्द बहुत हो जाए, सांस फूलने लगे, तो आप तुरंत उससे पहले ही एक्शन कर सकते हैं। नहीं तो ये माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। अभी 2 दिन पहले ही एक यहाँ शहर की जो मेरठ में ही एक फैमिली है जो मेरे से रिलेटेड थी, उन्होंने बताया उनकी डॉटर इन लॉ का बीपी ठीक ठीक था और ऐसा नहीं लग रहा था वो एकदम शूट करेगा। कल उसका बीपी शूट कर गया। कलर डॉपलर में बहुत सारे चेंजेस नहीं थे, मगर आज उसका बीपी और ज्यादा शूट कर गया और दवाई देते देते भी शूट कर गया और सुबह उसके सिर में बहुत जबरदस्त दर्द हो गया। तो तभी उस बच्चे को निकालना पड़ा जो कि ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड बच्चा था और वो जाते ही सीपैप पे चला गया। अगर उस बच्चे को नहीं निकाला जाता तो एज ए न्यूनेटोलॉजिस्ट मैं बताना चाहूंगा उसके अंदर खून की सप्लाई बच्चे तक नहीं पहुंचती और धीरे धीरे उसकी ऑक्सीजन ब्रेन के अंदर कम हो जाती, जो ब्रेन को डैमेज भी कर सकती थी। हमारी बॉडी के अंदर एक फिनोमेना है कि जब कोई संकट आता तो पहले बॉडी ही हेल्प करती है। तो ऐसे बच्चे अक्सर पहले घूमना बंद हो जाते हैं क्योंकि वो बॉडी के लिए ऑक्सीजन और जो मेजर ऑर्गन है, जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उनके लिए ब्लड ब्लड और ऑक्सीजन प्रिजर्व करने के लिए जो बाकी का शरीर को शिथिल कर देते हैं। तो ऐसे बच्चे कम घूमना शुरू हो जाते हैं। बट कई बार वो स्थिति इतनी लेट हो जाती है कि वो हाइपोक्सिमिक, वो प्रोग्रेसिव ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर हो जाती है। वो बच्चे अगर टाइम से निकल जाएंगे तो उनकी स्थिति आगे अच्छी रहेगी। अगर वो डिलीवरी टाइम से नहीं हुई, अगर वो डिलीवरी का जो अप्रोप्रिएट टाइम था वो अगर मिस कर दिया किसी भी कंफ्यूजन में, तो बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो माँ के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। आप सहमत है मैडम इस बात से? यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बड़ा बहुत नैरो मार्जिन है हमें जो आपने केस डिस्कस किया है अभी, उसमें बहुत नैरो मार्जिन है, क्योंकि इंट्रा यूट्राइन बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो आउटसाइड नहीं होती है। राइट। हमारे लिए एक एक दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हमें ये डिटेक्ट करना जरूरी होता है कहीं बच्चे में हाइपोक्सिक चेंजेस तो नहीं आने लगे। यदि बच्चे में हाइपोक्सिक चेंजेस आने लगे तो उस बच्चे की रिकवरी पोस्ट डिलीवरी, पोस्ट सिजेरियन भी बहुत अच्छी नहीं होती है, चाहे वो आईक्यू लेवल पर देखा जाए या किसी भी लेवल पर। तो हमें बच्चा हाइपोक्सिक होने से पहले बाहर निकालना है, और मैक्सिमम जितनी जेस्टेशनल एज हम उसकी कर सकते हैं वो हमें प्रोलॉन्ग करनी चाहिए उतना टाइम प्रेगनेंसी का। ऐसे में तो डॉक्टर के संपर्क में रहना बहुत जरूरी है। जैसे आजकल आप लोग कुछ इंजेक्शंस भी लगाते हैं डेकाड्रॉन या बैक्नेसोल के, जो बच्चे के ब्रेन को और बच्चे के लंग्स को डेवलप कर देते हैं। तो ये तो तभी पता चलेगा जब डॉक्टर के पास समय से डॉक्टर पेशेंट जाता रहेगा। अक्सर जब एज ए न्यूनेटोलॉजिस्ट मैं देखता हूँ वो आके कंप्लेन करते हैं जी शुरू से हम तो उन्हीं डॉक्टर साहब को दिखा रहे थे। बट अगर उन्हें बारीकी से देखा जाए तो उन्होंने डॉक्टर साहब को दिखाया तो था 1 या 2 बार, वो रेगुलर नहीं जा रहे थे उन डॉक्टर साहब के पास। और जो लास्ट टाइम जो उन्हें जाने का टाइम था वो उस समय टच में नहीं थे, क्योंकि बहुत सारी चीजें अचानक से खराब होती हैं और खराब होने से पहले वो सही दिखती हैं। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे क्या होने वाला है आपके पास। तो जो प्रेगनेंसी जो एक आपके घर में खुशियां लाने वाली है वो दुख में पलट जाएगी। और आपका जहां तक जो कि हमारी पॉपुलेशन में खर्चा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो थोड़ा खर्चा बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड ना करा के या डॉक्टर को विजिट ना करके, वो उल्टा उससे कहीं ज्यादा आपका खर्चा भी होगा। और प्रोग्नोसिस प्रोग्नोसिस से मतलब है बच्चे का बचना ना बचना भी कई बार बेकार हो जाता है। इसी वजह आजकल आज भी इंडिया के अंदर सेरेब्रल पाल्सी बहुत कॉमन है। दौरे प्रेगनेंसी के प्रॉपर मैनेज ना होने की वजह से दौरे भी बच्चों में बहुत कॉमन है। अगर टाइम से डॉक्टर को दिखाते रहें और टाइम डॉक्टर को फॉलो करते रहें और डॉक्टर को अपने डॉक्टर पे भरोसा करें कि जब वो ऑपरेशन करना चाह रही हैं या जब वो नॉर्मल डिलीवर करना चाह रही हैं उनके साथ कोई रेजिस्टेंस पेश ना की जाए। जनरली मैंने देखा है कि बहुत से डॉक्टर को बहुत प्रेस करते हैं कि ऑपरेशन ना हो, नॉर्मल डिलीवरी कर दें। ये भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट सोसाइटी में जबरदस्ती नॉर्मल डिलीवरी कराने का। तो ये जो डिलीवरी का टाइम है, डिलीवरी का डिसीजन है, ये सीधा सीधा लेडी डॉक्टर का होता है। आप उसी लेडी डॉक्टर को दिखाएं जिसपे आप ट्रस्ट करते हैं और फिर उनके ऊपर छोड़ दें। जी मैम। यस सर। क्योंकि जो जो हम बात कर रहे हैं प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया की, उसके अंदर
प्री एक्लेम्पसिया के अंदर जो बाकी के ऑर्गन है, जैसे किडनी है, उस पे इफेक्ट होने लगता है, आपकी प्लेटलेट पे इफेक्ट होने लगता है, और इससे मिलती जुलती बहुत सारी बीमारी हैं, जैसे एक बीमारी को कहते हैं हेल्प सिंड्रोम। उसमें लीवर के एंजाइम डिस्टर्ब हो जाते हैं, कुछ लोगों के अंदर क्लॉट चला जाता है ब्रेन में। जैसे अभी मेरे पास एक लेडी का बेबी आया था दिखाने, तो उन्होंने बताया कि हमारी जो इस बच्चे की मदर थी, उसको ब्लड प्रेशर रहता था और उसके दिमाग में फिर क्लॉट चला गया। अब उन्होंने उस ब्लड प्रेशर के रहने में एक बार ही अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन को दिखाया और उसको फॉलो नहीं किया। उसमें थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना हुआ, क्लॉट चला गया, बच्चा भी मरते मरते बचा, और बच्चे को फिर बाद में पेट की प्रॉब्लम हो गई, नेक्रोटाइजिंग एंटरकोलाइटिस हो गई, बच्चे का भी ऑपरेशन हो गया। उनका जो जहां भी उन्होंने इलाज कराया, उनको 8 लाख प्लस बच्चे पे खर्च हो गया उसे बचाने के अंदर। तो आपने जो एक ब्लड प्रेशर जैसी सिंपल चीज को मजाक समझ लिया और अपनी ऑब्स्टिशियन का जो एडवाइस थी वो फॉलो नहीं करी आपने, तो वो जो एक क्लॉट था शायद वो बचाया जा सकता था। जो बच्चे को डिलीवरी जल्दी करनी पड़ गई क्लॉट की वजह से, तो वो शायद बच जाता। क्या क्या कहना चाहेंगी मैम इस बारे में आप? सर मैं ये कहना चाहूंगी कि आज के टाइम में जो हम लोग फेस कर रहे हैं, दो ही बेस मतलब मैक्सिमम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, डायबिटीज और हाइपरटेंशन। और जो ये पेशेंट होते हैं आइडियल एडमिशन की, और उनको मिनिमम 3 डेज के लिए एडमिट करते हैं। यदि वो 30 या 31 वीक्स और हमें ऐसा लग रहा है कि हमें बिफोर टाइम इसकी डिलीवरी करानी पड़ सकती है, तो हम लोग ऐसे केस में स्टेरॉइड बच्चे के लंग डेवलपमेंट के लिए भी देते हैं, और मैक्सल्फ भी देते हैं बच्चे के न्यूरोनल डेवलपमेंट के लिए। तो ये पेशेंट कायदे में एडमिट होने चाहिए, डायबिटीज हो या हाइपरटेंशन हो। और डॉक्टर के ऊपर देखिए, डॉक्टर आपका वेल विशर ही है। कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहेगा मेरे पेशेंट में कोई दिक्कत हो। तो मैं तो सबसे, जितने भी लोग सुन रहे हैं फॉलोअर से यही रिक्वेस्ट करूंगी, अपने डॉक्टर पर विश्वास करिए, और जो डॉक्टर एडवाइस कर रहा है उसको सीरियसली लीजिए। क्योंकि ब्लड प्रेशर और बहुत डायबिटीज इस टाइप की प्रॉब्लम है जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, और इससे रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशन है उनको हम कम कर सकते हैं। अब जैसे हाइपरटेंशन का डॉक्टर साहब बता रहे हैं, हाइपरटेंशन एक ऐसी प्रॉब्लम है कि माँ की जान भी खतरे में, बच्चे की जान भी खतरे में। एक जने की नहीं कि हम बच्चे के लिए ही सोच रहे हैं, हम यहाँ माँ के लिए भी सोच रहे हैं, दोनों ही रिस्क में है। और यदि हम अनफॉर्चुनेटली किसी को भी लूज करते हैं, तो इट्स अवर फेलियर, इट्स योर फेलियर, इट्स सोसाइटीज फेलियर। जो डॉक्टर अनुज इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, इट्स हिज फेलियर कि वो इतना इंपॉर्टेंट मैसेज सबको देना चाह रहे हैं। यदि इस सेशन को सुनने के बाद भी किसी से ये गलती होती है तो एक मैं कंफ्यूजन और दूर करना चाहूंगा। बहुत बार बच्चे की एज को लेकर डिस्क्रिपेंसी रहती है। जो लास्ट के 3 महीने का अल्ट्रासाउंड है उसमें प्लस माइनस 2 to 3 वीक्स का डिफरेंस रहता है, अगर हम जेस्टेशनल एज कैलकुलेट करेंगे उस मेथड से। और जो पहले 3 महीने का अल्ट्रासाउंड है वो काफी एक्यूरेट होता है। तो इन हमारे जो टेस्ट हैं उनकी फैलेसीज हैं, उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। उसमें कुछ टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ फॉल्स नेगेटिव हो सकते हैं। उसके लिए आप गलत सोचना बिल्कुल नहीं बनता है, और आपको अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करना चाहिए। जैसे कि एल्बुमिन यूरिन के अंदर टेस्ट होता है, वो फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है, फॉल्स नेगेटिव भी हो सकता है। अगर एसिडिक यूरिन है तो आपका एल्बुमिन नेगेटिव भी आ सकता है। और अचानक से भी, क्योंकि जो बीमारियां हैं, जो ये सब चीजें हैं, प्लेटलेट काउंट है या कुछ भी है, वो अचानक से भी खराब हो सकते हैं। अगर आप रेगुलर टच में रहेंगे डॉक्टर के, तो आप सेफ रहेंगे। आप अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करिए, जो कि आज की तारीख में, ये सब मैंने फेसबुक पे 4-5 साल से एक्टिव होना सिर्फ इसलिए शुरू करा, मुझे ये लगा कि जो ट्रस्ट है वो मिस होता जा रहा है, और रेगुलर ब्लेमिंग चलती है अब बिना समझे। तो मुझे लगा कि मैं अगर इन्हें एजुकेट करूंगा, ये गैप ब्रीच होगा, गैप कम होगा और लोग समझेंगे। मैम, शुगर के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? सर शुगर की टेस्टिंग भी हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली कराते हैं, लाइक फर्स्ट विजिट पर भी हमें करानी है, और सबकी कराते हैं सर। फैमिली हिस्ट्री जरूर हम लोग लेते हैं, और मतलब यदि जैसे इसका ना आजकल घर घर में ग्लूकोमीटर है, अब किसी लड़की ने अपना शुगर वहीं टेस्ट कर लिया और उसका शुगर 140 आ रहा है, तो अब आप क्या करेंगे? क्या अप्रोच होनी चाहिए उसकी? मतलब उसको डायबिटीज माना जाए, या उसका कोई और तरीका है इसे कंफर्म करने का? क्योंकि ये एज ए न्यूनेटोलॉजिस्ट मैं जानता हूँ, जो एडल्ट शुगर है, जब हाई शुगर काफी हाई लेवल पे कहते हैं, उनमें कीटोन्स जो बनते हैं वो काफी हाई लेवल पे बनते हैं, मगर प्रेगनेंसी के अंदर वो छोटे लेवल पे भी बन जाते हैं, कम लेवल पे भी बन जाते हैं।
तो क्या 140 उन्होंने एक रैंडम शुगर ले ली तो उससे क्या आप सेटिस्फाई रहेंगी कि इसे शुगर है या नहीं है? सर बट मैं ये जरूर कहूंगी कि ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक डिसफंक्शन है, इसको हम नॉर्मल नहीं मानेंगे, पर इट कैन बी कंट्रोल्ड विद डाइट। शी शुड बी कॉशियस, उसको कॉशियस रहना चाहिए कि मेरा शुगर इस प्रेगनेंसी में किसी भी समय बढ़ सकता है। तो जो हम लोग बुलाते हैं पेशेंट को, तो हम फर्स्ट विजिट पर एक टेस्ट यही करते हैं कि एक उसको 75 ग्राम ग्लूकोज पिला के और उसके 2 घंटे बाद शुगर टेस्ट करते हैं। यदि उसकी शुगर 130 से ज्यादा है तो हमें अलर्ट होना पड़ता है कि किसी भी समय ये पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिया में जा सकती है और मैक्रोसोमिया या मतलब शुगर मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन फेस कर सकती है। तो अच्छा ये जी, उसके लिए अलार्मिंग साइन है। अक्सर क्या होता है कि शुगर बड़ी भी होने से और शुगर कंट्रोल ना होने से बच्चे का साइज बढ़ जाता है, उसमें इंसुलिन इतना डिस्टर्ब हो जाता है, जो डिलीवरी शायद नॉर्मल हो सकती थी वो फिर या तो ऑपरेशन से होती है या बच्चा फंस जाता है जो उसके ब्रेन पे इफेक्ट हो जाता है। तो शुगर एक ऐसा इंडिकेशन है जो अगर आप टाइम से कंट्रोल कर लेंगे, और मैं अगर और डेप्थ से बताऊं तो ऐसे बच्चों का हार्ट की जो वॉल है वो बहुत मोटी हो जाती है, उनका जो सेप्टम है हार्ट का वो मोटा हो जाता है, उनका जो कोलन है जो बड़ी आंत है वो कई बार छोटी हो जाती है, कुछ बच्चों के ब्रेन में भी कमी हो जाती है। तो डायबिटीज एक सिंपल बीमारी नहीं है प्रेगनेंसी के अंदर कि आप कुछ भी उसको कोई हर्बल मेडिसिन लेके कंट्रोल करने की कोशिश करें या डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो ना करें। जी मैम। यस सर, सर डायबिटीज इज वेरी सिंपल एंड वेरी कॉम्प्लिकेटिंग। सिंपल इसलिए मैं कहूंगी कि आप यदि अवेयर है तो आप उसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। ओके मैम। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कहूंगी कि थोड़ा सा आपको अपनी लाइफ स्टाइल, आपको डाइट मॉडिफिकेशन और ये सब चीजें आपको कंट्रोल करनी पड़ती है, तभी जाके कंट्रोल होती है। और डॉक्टर की जरूरत तो है ही सर। यदि डाइटरी कंट्रोल नहीं हो रहा है, एक्सरसाइज से कंट्रोल नहीं हो रहा है, योगा से नहीं हो रहा है, तो आपको मेडिकेशन लेना ही पड़ेगा। और प्रेगनेंसी में यदि जब हम इंसुलिन एडवाइस करते हैं तो इन लोग को हेजिटेट नहीं करना चाहिए। इंसुलिन इज द सेफ, और बच्चे के लिए भी सेफ है, आपके लिए भी सेफ है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, जो भी आप खाना चाहे खा सकते हैं। आप इंसुलिन की डोज थोड़ी सी बढ़ा देंगे हम, लेकिन ये कि वेल कंट्रोल्ड होनी चाहिए, वो आपके हाथ में है। तो इनफैक्ट जो इंसुलिन का सिक्रीशन बॉडी में प्रॉपर नहीं हो रहा वो बाहर से ले रहे हैं आप, इतनी सिंपल सी बात है, और उससे कोई इतनी आदत सिंपल पड़ सी बात जाती है है, क्या मत उसका कोई हार्म। हमारी सोसाइटी में ये बहुत कंसेप्ट है, इनहेलर ले लिया तो इसकी आदत पड़ जाएगी। इसकी क्या इंसुलिन लेने के बाद क्या तमाम जिंदगी उन्हें इंसुलिन लेनी पड़ेगी इन माओं को? नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन दीज लेडीज आर प्रोन टू डेवलप डायबिटीज इन द फ्यूचर टाइम। जिन लेडीज को प्रेगनेंसी के टाइम पर शुगर मतलब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है या जिनका शुगर लेवल बढ़ता है, तो डिलीवरी के बाद तो शुगर नॉर्मल आ जाएगी, लेकिन दीज लेडीज आर वेरी प्रोन टू डेवलप, वेरी सेंसिटिव टू डेवलप डायबिटीज इन द फ्यूचर टाइम आफ्टर द एज ऑफ और एट द एज ऑफ 40। तो दे शुड बी कॉशियस कि ये फ्यूचर में डायबिटिक हो सकती हैं। बट ऐसा पर तो ये नहीं है ऐसा कि नहीं है। इंसुलिन तो नहीं लाइफ लॉन्ग लगाना पड़ेगा उन्हें, नहीं नहीं चलिए नहीं वो तो नहीं बात नहीं अलग है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। कि और प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद इंसुलिन हम लोग बंद कर देते हैं और इंसुलिन की जरूरत भी नहीं होती है। तो ये एक मिथ है सोसाइटी के अंदर, वो ये डरते हैं कि इंसुलिन शुरू कर दिया तो फिर पता चला इंसुलिन ही चलता रहेगा हमारा लाइफ लॉन्ग, ऐसा सोचते हैं लोग। वो शायद डॉक्टर के सामने नहीं बोल पाते, मगर उनको पीछे से सोसाइटी जो हमारा कल्चरल बिलीफ है वो ये है कि एक बार इंसुलिन पे चले गए तो फिर जिंदगी इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो मैडम का मैसेज ये है कि एक्चुअली सर क्या होता है प्रेगनेंसी में, एक्चुअली प्रेगनेंसी में क्या होता है सर, जो प्लेसेंटा होता है जी वो मैम। जो हार्मोन निकालता है वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को कम कर देता है। तो इसलिए इंसुलिन की रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी के टाइम पर पड़ जाती है। जब डिलीवरी हो गई, प्लेसेंटा निकल गया, तो इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी होती है वो नॉर्मल आ जाती है। तो इसलिए इंसुलिन की बाद में जरूरत नहीं पड़ती है। ओके मैम। अच्छा मैम, अगर किसी एक लेडी को एबॉर्शन हो गया पहले या उसका एक बच्चा एबनॉर्मल हो गया तो उसके लिए क्या प्लानिंग करेंगे आप? बहुत सी लेडीज इसमें बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहती, उन्हें डर लगता है कि दोबारा ऐसा बच्चा तो नहीं हो जाएगा, ऐसी नहीं लेडीज। ऐसा नहीं है सर, रोड पर एक्सीडेंट होते हैं तो क्या हम सड़क पर चलना बंद कर देते हैं? राइट मैम, राइट। है नहीं? तो यदि किसी के साथ इतना अनफॉर्चुनेट हुआ है, मिसहैप हुआ है, उसको ऐसा ना लें कि हमेशा ऐसा होगा। बेटर होगा
कि एक बार यदि हो गया है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपनी प्री टेस्टिंग करा लीजिए, नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले सारी टेस्टिंग करा लीजिए, और उसमें कोई ना कोई कॉज जरूर निकल के आएगा, जो कॉज निकल के आता है उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर में ट्रीटमेंट लीजिए। ऐसे आज के टाइम में साइंस इतनी डेवलप हो गई है कि दे आर ओनली फ्यू कंडीशन जहां जिसका ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज सभी चीज का ऑप्शन है। तो आप उससे डरिए नहीं, आप प्रॉपर अपना डॉक्टर से कंसल्ट करके इन्वेस्टिगेट करा के प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। तो बट प्रेगनेंसी से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड तो घर घर में डॉक्टर हैं जो घर के यही तो प्रॉब्लम है सर, हैं, दिस इज अवर बिग प्रॉब्लम। हैं। यस सर। तो एक मैसेज मैं देना चाहूंगा, जिन माओ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है या ओ ग्रुप है, उनके बच्चों में जॉन्डिस होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। और खासकर अगर नेगेटिव ग्रुप है तो आप उस मदर का ब्लड फैमिली में मैच करा के रखिए। हो सकता है उसका जो बच्चा हो उसमें खून वगैरह चेंज करना पड़े बाद में, और उस समय डॉक्टर को मैच करता हुआ खून नहीं मिल पाता है। कुछ इस बारे में भी आप कहना चाहेंगे? कोई एंटी-डी इंजेक्शन होता है, वो कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं? सर जैसे प्री कंसेप्शनल, आजकल तो सर प्री मैरिटल काउंसलिंग होती है, ओके मैम। लोग कुंडली मिलाते हैं शादी से पहले, और हम कहते हैं कि आप अपना ब्लड ग्रुप मैच करा लीजिए, कुछ ऐसी डिजीज है उनको मैच करा लीजिए, जिससे कि आपको फ्यूचर के प्रेगनेंसी जब प्लान करें ऐसी कोई दिक्कत ना आए। तो हम लोग सर एक सबसे पहले तो ब्लड ग्रुप ही कराते हैं सर, हस्बैंड वाइफ दोनों का। यदि वाइफ इज नेगेटिव तो हस्बैंड का भी कराते हैं। दूसरा, हम लोग थैलेसीमिया एक्सक्लूड करते हैं इन लोगों में, तो ओके। डायबिटीज एक्सक्लूड करते हैं, थैलेसीमिया एक्सक्लूड करते हैं। यदि एक पार्टनर, सपोज लेडी हमारी थैलेसीमिया माइनर है, तो हस्बैंड का हम लोग जरूर कराते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी थैलेसीमिया माइनर ना हो और आने वाला बच्चा हमारा थैलेसीमिया मेजर हो, जिससे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाए। तो ये मतलब सर मैं शायद अपने आपके क्वेश्चन से शायद हट गई, कुछ और पूछा था आपने, मुझे याद नहीं आ रहा। ये पूछा था, जो RH नेगेटिव मदर है उसको कब हाँ एंटी हाँ देंगे और कितना एंटी-डी देंगे, हाँ हाँ उसका ठीक। क्या प्लान है? यदि किसी भी, हाँ, यदि कोई भी लेडी RH नेगेटिव है और उसको प्रेगनेंसी हुई है, सपोज उसका अबॉर्शन हो गया, अबॉर्शन हो गया तो भी उसको एंटी-डी का, और हस्बैंड RH पॉजिटिव है तो एंटी-डी लगवा लेना चाहिए, चाहे वो अबॉर्शन हुआ हो, चाहे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई हो, चाहे बीच में कभी भी उसका बच्चा खराब हुआ, मिसकैरेज हुआ, तब भी लगवा लेना चाहिए। यदि उसकी सेफ जर्नी चल रही है, सेफ है, तो हम ये सोचते हैं कि एंटी मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी लगा लेना चाहिए एट 28 वीक्स। तो प्रोफाइलैक्टिकली एक 28 वीक्स मतलब 7 मंथ पर लगवा लेना चाहिए। दूसरा एंटी-डी डिलीवरी के 24-48 घंटे में लगवा लेना चाहिए। ऑल्दो 1 हफ्ते तक लगवा सकती है, पर हम प्रीफर करते हैं 24 से 48 घंटे में लग जाए उसको। अब जब कभी भी फ्यूचर में वो प्रेगनेंसी प्लान करती है तो हम लोग टेस्टिंग करा लेते हैं कि इतनी सब इंजेक्शन लगने के बाद या अनफॉर्चुनेटली नहीं लगवा पाई तो उसमें ब्लड मिक्सिंग तो नहीं हुई, बच्चे में जॉन्डिस के कितने परसेंट चांसेस है। तो हम लोग, जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके ब्लड में कितनी मिक्सिंग है, कितने चांसेस है बच्चे को जॉन्डिस डेवलप होने के। या उसका खून टूटने के, उसका हीमोग्लोबिन कम होने के कितने परसेंट चांस है? यस उस सर। उस टेस्ट का नाम तो अब लोग जानने लगे, इनडायरेक्ट खून टेस्ट की बात कर रही हैं शायद आप? यस सर, तो ICT, इनडायरेक्ट खून टेस्ट। वो दो तरीके से इनडायरेक्ट खून टेस्ट होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अनफॉर्चुनेटली क्वांटिटेटिव टेस्ट इंडिया में आराम से नहीं होता है, ज्यादातर क्वालिटेटिव होता है। अगर क्वांटिटेटिव हो तो उससे और ज्यादा बढ़िया आइडिया लगता है कि उसके अंदर कितना हीमोलिसिस से जॉन्डिस बढ़ेगा या कितना उसका हीमोग्लोबिन कम हुआ होगा। तो टाइम से और भी कोई मैडम, काफी टाइम ले लिया मैंने आपका, कोई और एडवाइस देना चाहेंगी आप सर इन लोगों का हमारे? हम लोग ना नहीं नहीं, कई बार हम लोग इन लोगों को ना सर बहुत फ्रीक्वेंट अल्ट्रासाउंड करते हैं, MCD अल्ट्रासाउंड से भी हमें पता चल जाता है कि ये बच्चे कितना अफेक्ट होने जा रहे हैं। तो जिस समय हमें ये लगता है कि बच्चे में एनीमिया डेवलप होने लगा है और बच्चे की अभी लंग मैच्योरिटी नहीं हुई होगी, तो हम लोग डिसीजन इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन जो आप कराते हैं हम लोग फीटल मेडिसिन वालों से, या हम लोग उसकी डिलीवरी ऐसे प्लान करते हैं कि डिलीवर होके उसका चांसेस एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन या ब्लड बदलने की चांसेस है, तो जैसे हम आप लोगों से कोऑर्डिनेट पहले से कर लेते हैं और डिलीवर होते ही बच्चा हम लोग जो टर्शियरी लेवल की नर्सरी है उसमें शिफ्ट करा देते हैं।
उस ऐसे बच्चों को हम एक IVIG नाम का इंजेक्शन है, पैदा होते ही दे देते हैं, चाहे जॉन्डिस उस समय कम भी हो, तो उनकी जो एंटीबॉडीज हैं वो ब्लॉक कर देते हैं कि जिससे उन बच्चों का ब्लड ना टूटे या जॉन्डिस उनकी इतनी ज्यादा ना बढ़े। आज की तारीख में जैसे जहाँ मैं काम करता हूँ जसवंत राय स्पेशलिटी में, वहाँ हमारे पास ब्ली ब्लैंकेट और बहुत स्पेशल लाइट हैं जिसमें हम पूरी कोशिश करते हैं अगर टाइम से बच्चा आ जाए कि उसकी जॉन्डिस इतनी ना बढ़े कि उसका खून चेंज करना पड़े। बट अनफॉर्चुनेटली बच्चे थर्ड और फोर्थ डे आते हैं जब तक उनकी जॉन्डिस बिगड़ गई होती है, फिर हमारे पास खून चेंज करने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। और जॉन्डिस बहुत खराब हो जाए तो बच्चे के कान डैमेज हो सकते हैं या उसका ब्रेन डैमेज हो सकता है। ब्रेन के अंदर जहाँ नसों का गुच्छा है उसे कहते हैं बेसल गैंग्लिया, वहां पे जाके बिलिरुबिन डिपॉजिट हो जाता है और बेसल गैंग्लिया को डैमेज कर देता है। तो ऐसे बच्चों के दिमाग पे सूजन आ जाती है और उनका भविष्य अंधकार में चला जाता है। और ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो एक दो बच्चा जरूर दिख जाएगा, क्योंकि RH नेगेटिव मदर हमारे यहाँ तकरीबन 12% तक है। तो ये एक प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, जो कि अगर हम एक अच्छे डॉक्टर से, एक अच्छी लेडी डॉक्टर से संपर्क में हैं तो हम बहुत सारी चीजों से ऐसे बच जाते हैं। बट जब हम अपना दिमाग यूज करने लगते हैं, हम खुद जजमेंटल हो जाते हैं, तो ये सब परेशानियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि हमें ये बारीक स्टेप, ये हमें डेप्थ नॉलेज, ये हमें नहीं मालूम है। अब आप मुझसे, मैं कई बार समझाने के लिए कहता हूँ मसूर की दाल 2 घंटे में बन जाती है, राजमा 8 घंटे में भी नहीं, भिगोना पड़ता है। तो अगर आपको ये बात समझनी है तो जिसको पता है उसको पता है, मैं आपको देख के दाल नहीं बना सकता। इट इज नॉट सो इजी, 2 + 2 4 नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये डॉक्टर का अपना एक्सपीरियंस होता है, उसकी नॉलेज होती है और वो रेगुलर टच में रहता है। और हम एज ए डॉक्टर जब कभी फंसते हैं तो हम अपने साथियों से भी बात करते हैं, पढ़ते भी हैं उसके लिए और समझने की कोशिश भी करते हैं। बट ये तभी संभव है जब एक फैमिली उस डॉक्टर के अंदर ट्रस्ट रखे और उसके पास रेगुलर जाए, जब वो बुलाए उसके पास जाए। अल्ट्रासाउंड को लेके बड़ी कंट्रोवर्सी रहती है कि बार बार अल्ट्रासाउंड करा देते हैं, खासकर जो IUGR बच्चे हैं जिनका कलर डॉपलर खराब आ रहा है, तो उसमें तो हमें कई बार हर तीसरे दिन, हर दूसरे दिन भी कलर डॉपलर कराना हो सकता है, क्योंकि हम डिलीवरी का टाइम बिल्कुल अप्रोप्रिएट चाहते हैं। हम नहीं चाहते बच्चे के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो और वो पेट के अंदर पड़ा रहे और जब पता चले जब उसको डैमेज हो जाए। ऐसे बहुत सारे इसके पैरामीटर्स हैं जो डॉक्टर जानते हैं, जो अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर वो जानते हैं, जो लेडी डॉक्टर वो जानती हैं, और वो अपने न्यूनेटोलॉजिस्ट के संपर्क में भी रहते हैं और दोनों मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं और फिर बच्चे को बाहर निकाल के प्रेगनेंसी टर्मिनेट करते हैं और बच्चे की सेफ्टी के लिए उसके लिए अप्रोप्रिएट डिसीजन लेते हैं। मैम कितना, कई बार आपको 8 मतलब 5 5 6 6 7 7 बार भी अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता होगा, तो हमारी तो जनरल पॉपुलेशन इसे बड़ा गलत समझती होगी कि बार बार अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, अभी तो कराया था। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Sir, ultrasound is totally safe. ओके मैम, नॉन We can इन्वेसिव। do daily. हम लोग ओके। डेली भी कर सकते हैं। जो ये जिसमें हम लोग का टाइम डिसाइड करना होता है, जैसे सीवियर IUGR है, सीवियर ओलिगोहाइड्रोनियस है, तो उनमें हमारे लिए एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे केस में कई बार हम डेली फ्लो देखने के लिए करते हैं कि डक्टस वेनोसिस का फ्लो देख लें या MCA का फ्लो देख लें, मतलब बच्चे के ब्रेन का फ्लो देख लें, कि जिस समय भी हमें लगता है कि बच्चे के ब्रेन का फ्लो हैम्पर होने लगा है, तो उसी दिन हम लोग सिजेरियन कर लेते हैं और बेबी आउट करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड इज टोटली सेफ। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने आपका बहुत टाइम लिया, आप इसे ना 5 10 पॉइंट में समरी बना के आप हमें दे दीजिए, तो जो हमारे को सुन रहे हैं हम इन सबको मेल कर देंगे और ये रेगुलर जिस भी शहर से लोग हैं सब अपने अपने डॉक्टर के साथ टच में रह के इस चीज को फॉलो करेंगे और फायदा उठाएंगे। थैंक यू मैम, मैंने ओके सर, थैंक यू। नहीं नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू, हो गई। थैंक यू, नमस्कार मैम। थैंक यू, नमस्कार थैंक यू मैम। सर।